Assalamu alaikum और welcome back to Orange Shots. First things first, it feels so nice to be back home. Alhamdulillah, I am back in Lahore और इस वक्त आज की ये जो वीडियो है ये मैं लाहौर में बना रहा हूँ. It feels awesome. मैं आपको बता नहीं सकता कि how glad am I to come back to my kids and my family after 8 months. Long contract. Recently, Apple has released the iPhone 12, 12 mini, 12 Pro and 12 Pro Max. इनमें से iPhone 12 और iPhone 12 Pro they are already available in the market. Mini और Max जल्दी आ जाएंगे. For some of you guys, they might be the most awaited phones of all the times. For others, not so much. But in any case, let's talk about what do Apple has to offer this year around. इस पर क्या Apple नया लेके आ रहा है? Let's start. अभी तक के आईफोन के जो दोनों मॉडल्स रिलीज हुए हैं यानी कि दैट इज iPhone 12 एंड iPhone 12 Pro. इफ यू लुक फ्रॉम अ डिस्टेंस तो आपको ज़्यादा फर्क उसमें महसूस होता नहीं है. अपेरेंटली दे लुक क्वाइट सिमिलर एंड इन फैक्ट देयर साइज इज एग्जैक्टली द सेम. इफ यू कीप वन ऑन द टॉप ऑफ द अदर यू वोंट फाइंड एनी डिफरेंस. आपको ऐसा लगेगा कि यार दोनों बिल्कुल एक ही जैसे हैं. अपार्ट फ्रॉम द बिल्ड, द फिट एंड फिनिश एंड स्लाइटेस्ट ऑफ द ट्वीक्स. फॉर एग्जाम्पल, आपका iPhone 12 जो है उसके इर्द गिर्द जो बॉर्डर दिया हुआ है दैट इज मेड ऑफ एल्यूमिनियम. लेकिन iPhone 12 Pro जो है उसका जो बॉर्डर दिया हुआ है the bezel that is encompassing the iPhone 12 Pro that is stainless steel. So that is one difference obviously that you will note. और अगर आप मुझसे पूछें, it's up to personal choice. Some people like the border that is made of aluminum, other people like the border that is made of steel. If you ask me personally, मुझे stainless steel का border ज़्यादा अच्छा लगता है. You just wipe it off once and it's squeaky clean. I like that thing. Apart from that, if you look closely तो आपको iPhone 12 Pro के अंदर LiDAR स्कैनर मिलेगा, आपको iPhone 12 के अंदर LiDAR स्कैनर नहीं मिलता. And then there is a difference of one camera. If you have a close look at both of these phones that have been recently released, यानी कि iPhone 12 और iPhone 12 Pro, दोनों का exactly same size है. दोनों के exactly same screen resolution है. The notch size is absolutely same. दोनों के अंदर exactly same MagSafe charger use हुआ है. दोनों की ports exactly same है. Apart from that aluminium and stainless steel, the buttons are also exactly the same. There is absolutely no difference when we talk of the buttons. दोनों की glass back है, glass front है. दोनों के अंदर exactly same ceramic coating use हुई है. They dedicated a lot of time to tell the people कि इसके अंदर हमने एक special ceramic coating use की है जो कि आपके iPhone की screen को ज़बरदस्त बना देगी, strong बना देगी. All of that stuff. Exactly same speaker grill, exactly same array of noise cancelling microphones. Almost everything is exactly same. I mean, it's really hard to find any difference between both of them except the cameras, the LiDAR and the stainless steel and aluminum bezel. iPhone 12 की कीमत है तकरीबन $800 and $800 का मतलब ये हुआ. Hey Siri, how much is $800 in Pakistan rupees? $800 is equivalent to about 126,000 Pakistani rupees. Thank you very much. How much is $1,000 in Pakistan rupees? $1,000 is 161,730 rupees. So that is the price of iPhone 12 and iPhone 12 Pro in Pakistan. लेकिन इसमें आपको वैसे टैक्स ऐड करना पड़ेगा. That is not added. Now the main question is कि अगर आप दोनों के दोनों फोन्स को देखें, they have absolutely similar specs. Then why is there a difference of $200 between the iPhone 12 and iPhone 12 Pro? Shouldn't we be asking that question? दोनों के दोनों फोन की कीमत में $200 का ये फर्क जस्टिफाई नहीं करता यार. Somehow it does not appeal to me. And if you watch Dave 2D, he's a very nice YouTuber by the way. और मैं उनकी वीडियो को भी नीचे लिंक कर दूंगा. Apart from getting all of this stuff via my research from all the websites and everything, definitely मैं YouTubers की वीडियोस भी देखता हूँ because उनकी वीडियोस से आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. क्योंकि iPhone 12 Pro अभी तक पाकिस्तान में तो आया नहीं, अगले कुछ दिनों में मुतवक्को है तो आएगा, तो फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या है और क्या कहानी नहीं है. तो बहरहाल Dave 2D ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात पॉइंट आउट की है और उसने बात ये पॉइंट आउट की है कि उनके ख्याल में ये फ़र्क जो $200 का है iPhone 12 और 12 Pro के अंदर, ये ओरिजिनल प्लान नहीं था. उनके ख्याल में ओरिजिनल प्लान शायद ये था कि iPhone 12 Pro के अंदर शायद Apple 120 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले लाना चाह रहा था, जो कि बहरहाल वो लाया नहीं. If you see the YouTube videos of other YouTubers like MKBHD, तो MKBHD की आई it is already trained with 120 Hz display and he says कि he can visually see a difference between this phone and those phones जिनके अंदर 120 Hz का डिस्प्ले इस्तेमाल हुआ है. If you ask me, मेरे iPad के अंदर 120 Hz का डिस्प्ले है ज़रूर, पर यार मुझे कभी अपने इस फ़ोन में iPad में मुझे नहीं पता चलता. लेकिन Dave 2D की बात मुझे अपील इसलिए करती है यार कि अगर आपके आईफोन के अंदर ये 120 हर्ट्ज़ के डिस्प्ले के रिफ्रेश रेट का डिफरेंस डाल दिया जाए तो फिर $200
हम जस्टिफाई कर सकते हैं। इफ़ यू हैव बीन यूजिंग iPhone 4, 4S, 5, 5S, उसकी सीरीज़ में वो जो साइड पे बिल्कुल फ्लैट बेजल से और जो डायमंड कट था, दोज बोथ ऑफ थिंग्स आर बैक एंड आई रियली लव्ड बोथ ऑफ दोज थिंग्स. They were amazing. Some people might have the issue of grabbing those flat edges. I don't think that is going to be an issue for me. Okay, now let's step ahead a little and let's talk about the 5G. And this year, Apple has decided, unlike the previous years, जबकि वो Androids के हमेशा पीछे होता था, इस पर उसने डिसाइड ये किया कि यार हम भी कम से कम वो काम तो कर लें या उससे बेहतर कर लें जो कि Androids ऑलरेडी कर रहे हैं. And what they have done is they have implemented 5G, and not just the 5G millimeter band. For most of the people in the world, not just Pakistan or India or Bangladesh, it's not going to really mean anything and it's not going to be productive. क्योंकि आप जो मर्जी कर लें, 5G हमारे पास एक तो है नहीं, और दूसरा जहाँ पे है भी वहाँ पे मिलीमीटर वेव में कहाँ है, और जहाँ पे 5G है भी वहाँ पे वो नेटवर्क्स खुद कहते हैं, T-Mobile खुद कहता है कि बहुत सारे ऐसे यूजर्स होंगे जिनको शायद 5G इस्तेमाल करने के बाद ये पता भी ना चल रहा हो कि वो 5G यूज़ कर रहे हैं. So I am not too much excited about that 5G thingy, but I am excited about the ceramic coating. Apple ने बड़े मज़ेदार किस्म के दावे किए हैं इसके बारे में जनाब कि ये छोटे छोटे क्रिस्टल्स हैं जो कि ग्लास के अंदर वूवन हैं एंड दे हैव डन इट विद द हेल्प ऑफ गोरिल्ला ग्लास एंड ऑल दैट स्टफ ब्ला 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 ब्ला. अगर आपने इसकी रियल वीडियो देखनी है कि क्रैश टेस्ट में कैसा परफॉर्म करते हैं तो एवरीथिंग एप्पल प्रो इज़ वन चैनल दैट आई वुड रियली रिकमेंड टू ऑल ऑफ यू. एंड ही हैज़ डन सम टेस्ट्स एंड देयर इज़ नो डाउट कि दोनों के दोनों फ़ोन्स की फ्रंट स्क्रीन जो है जिसके अंदर ये सिरेमिक शील्ड यूज़ हुई है, that is quite durable, quite a lot durable from the previous years. So this claim is actually valid. Talking about the batteries, the Apple has never been famous for including bigger batteries into their phone. और इस साल भी ये कहानी कुछ मुख्तलिफ है नहीं. 12 और 12 Pro के अंदर जो बैटरी इस्तेमाल हुई है that is around 2815 milliamperes. कोई इसको 2900 कह रहा है, कोई 2800 कह रहा है. एप्पल खुद तो क्लियरली कभी कुछ कहता नहीं है. बॉटम लाइन ये है यार कि दोनों के दोनों फ़ोन्स एग्जैक्टली सिमिलर होने के बावजूद iPhone 12 और iPhone 12 Pro की बैटरी लाइफ के अंदर डिफरेंस है. As strange as it might sound, but there's a difference. iPhone 12 Pro की बैटरी जो वो ज़्यादा चलती है, थोड़ी सी ज़्यादा चलती है. iPhone 12 की बैटरी ज़रा कम चलती है. I don't know, it's a difference in tweaks or it's a difference in the LiDAR scanner or it's a difference in the display. I mean, yes, iPhone 12 Pro का डिस्प्ले भी slightly brighter है, but I don't think that's going to cause this much of difference. Somehow there is. लगे आज ना बात कर लें हम मैगसेफ की भी. मैगसेफ के बारे में एप्पल ने काफ़ी ज़्यादा वक्त दिया अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर मैगसेफ को. बट यू शुड गो टू MKBHD, यू शुड सी हिज वीडियोज़ एंड वट यू विल स्ट्रेंजली फाइंड आउट इज़ कि एंड्रॉयड फ़ोन्स जिनके अंदर मैगसेफ अडाप्टर नहीं है, आप एप्पल का ये मैगसेफ चार्जर उन पर भी लगा सकते हैं. और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैगसेफ चार्जर इनकॉर्पोरेट करने के बावजूद iPhone 12 और 12 Pro के अंदर कोई ख़ास किसी किस्म की उनके मैग्नेट्स में कोई इतनी स्ट्रेंथ नहीं आई कि जिसको देख के आप ये कह सकें कि यार वाह कितना ज़बरदस्त किस्म का मैग्नेट है. कोई चीज़ चिपक जाती है तो उतरती नहीं है. MKBHD has clearly, he has shown it कि अगर आप अपने फ़ोन के पीछे वॉलेट भी चिपकाए ना जो एप्पल देता है, जब आप उसको जेब में डालेंगे तो वॉलेट निकल के बाहर आ जाएगा. टॉकिंग अबाउट द कैमराज, एप्पल का 11 Pro, 11 Pro Max like the one that I have right now in my hand, they all are equipped कि आप जो है वो लो लाइट की फोटोग्राफी कर सकें. लेकिन they were not particularly very good in the low light. अगर आप मेरा रिव्यू देखें iPhone 11 Pro Max का, तो जिसमें मैंने आपको क्लियरली ये बात बताई है कि लो लाइट के अंदर अल्ट्रा वाइड कैमरा इज़ नॉट वेरी गुड, बट दिस हैज़ चेंज दिस ईयर. iPhone 12 Pro they can take some really good photos. बट एट द सेम टाइम इसके जो कंपिटिटर्स हैं एंड्रॉइड साइड के ऊपर, अभी तक ये उनको बीट नहीं कर पाएगा, लेकिन अच्छी फ़ोटोज़ ले ज़रूर लेगा. अगर हम बात करें दोनों के दोनों फ़ोन्स के रेगुलर कैमरास की, तो दे आर स्टिल एज गुड एज द प्रीवियस ईयर. दी ओनली डिफरेंस इज के 12 Pro के अंदर अब लाइडार स्कैनर मौजूद है. लाइडार स्कैनर बेसिकली क्या करता है कि इंफ्रारेड रेज फेंक के ये डिटेक्ट करता है कि आपसे जो सब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस कितना है. तो व्हाट हैज़ इंप्रूव्ड रियली दिस ईयर इज़ द पोर्ट्रेट मोड. लाइडार स्कैनर की मदद से अब डेप्थ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना बहुत आसान है, उसकी कंप्यूटेशन बहुत आसान है, और अब आईफोन ईजिली ये डिटेक्ट कर पाता है कि कौन सी चीज़ आपसे करीब है, कौन सी चीज़ दूर है, और आपके बैकग्राउंड को वो उसी हिसाब से एक उम्दा तरीके से ब्लर कर सकता है. वो जो फेक किस्म का ब्लर था जो पहले आता था, जिसकी वजह से आपके फ़ोटोज़ एकदम पहचाने जाते थे कि यार ये किसी अच्छे कैमरा से नहीं लिए हुए, ये फ़ोन से फ़ोटोज़ लिए हुए हैं, अब मेरे ख्याल में वो पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. इसके अलावा एक कैमरा जिसका मैं शुरू से जिक्र करता आ रहा हूँ कि जो iPhone 12 Pro के अंदर नहीं है, iPhone 12 Pro Max के अंदर मौजूद है, वो है जनाब 2x जूम कैमरा. 2x जूम कैमरा अगर आप मुझसे पूछो तो इट्स कैन बी यूजफुल इन अ फ्यू सिचुएशंस, लेकिन अगर आप ऑलरेडी एक DSLR या मिररलेस कैमरा यूज़ कर रहे हैं, just like the one I am using right now, you won't be much impressed. But quick मेरे ख्याल में फोटोग्राफी के लिए आपके पास अगर 2x जूम कैमरा है तो I think that's a good addition. At the same time इस साल के जो iPhones हैं, that is 12 and 12 Pro,
दे कैन ऑल्सो शूट इन डॉल्बी विजन। लेकिन काफ़ी सारे एडिटर्स जनाब जो है ना वो डॉल्बी विजन को हैंडल नहीं कर सकते हैं। सो आई कैन नॉट रियली से एनीथिंग अबाउट दैट अनलेस मेरे पास एक्चुअल में 12 प्रो या 12 प्रो मैक्स या 12 आ जाए, मैं खुद उसको शूट करके आपको बता सकूँ। लेकिन अगर आप ये वीडियोस देखना चाह रहे हैं कि आईफोन 12 के और 12 प्रो के ऊपर अगर डॉल्बी विजन में वीडियोस शूट हो तो वो कैसी लगती हैं, तो मैं एक लिंक नीचे शेयर कर दूंगा, आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो यू कैन सी द सैम्पल्स। जिन साहब ने ये डॉल्बी विजन में फ़ोटोज़ ली हैं उन्होंने इसके ऊपर आईफोन के ऊपर ही एडिट किया है, क्योंकि मैं आपको एक और चीज़ ये बता दूँ कि डॉल्बी विजन में वीडियो शूट करना आईफोन 12 और 12 प्रो दोनों पर मुमकिन ज़रूर है, लेकिन हर एडिटर इनको एडिट कर नहीं सकता। आई डोंट नो अबाउट DaVinci Resolve एंड फाइनल कट बिकॉज दोज आर द टू दैट आई यूज़। एटलीस्ट फॉर नाउ Adobe Premiere Pro कैन नॉट हैंडल डॉल्बी विजन। अगर हम आईफोन 12 की बात करें तो इट इज़ प्राइस्ड एट अराउंड $800। इट्स अ लिटिल एक्सपेंसिव येस, बट एट द सेम टाइम आई थिंक बाय एप्पल स्टैंडर्ड्स एंड द क्वालिटी दैट दे गिव, जो क्वालिटी वो आपको मुहैया करते हैं, आई थिंक इट्स अ वेरी वेल राउंडेड फोन एंड आई कंप्लीटली एग्री विद डेव टूरी ऑन दिस। लेकिन अगर हम आईफोन 12 प्रो की बात करें तो मेरा ख्याल है कि सिर्फ एक लाइडर स्कैनर ऐड करके, एक 2x जूम कैमरा ऐड करके, रैम ऐड करके, स्टोरेज ऐड करके $200 का डिफरेंस डालना इज़ नॉट सो जस्टिफाइड। और आई अगेन एग्री विद डेव 2D ऑन दिस कि अगर आप इस साल आईफोन 12 प्रो ख़रीदते हैं तो शायद इस साल तो एप्पल ये फ़र्क दोनों के अंदर पैदा नहीं कर पाया, लेकिन अगले साल शायद एप्पल ये फ़र्क पैदा कर पाए कि आपके जो प्रो फोन्स हैं उनका डिस्प्ले जो है वो 120 हर्ट्ज़ का होगा। और अगर आपको आईफोन के ऊपर 120 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले मिल जाए तो आई थिंक दैट इज़ गोइंग टू बी a heaven for the gamers or something like that। अगर आप मुझसे पूछें कि which phone I am personally attracted to, इस साल एप्पल ने जो है वो हर फोन के अंदर तकरीबन ऑलमोस्ट सिमिलर स्पेक्स डाल दिए हैं। जस्ट द डिस्प्ले साइज इज डिफरेंट, अ लिटिल बिट ऑफ कैमरा इज डिफरेंट। प्रो के अंदर लाइडर स्कैनर है, जो नॉन प्रोसेस के अंदर लाइडर स्कैनर नहीं है। मेरा एक दोस्त है कमाल मंसूर, उसने बड़ी ज़बरदस्त बात की, उसने कहा सर लूंगा तो या तो आईफोन 12 प्रो मैक्स लूंगा, नहीं तो आईफोन 12 मिनी लूंगा। आई एम ऑल्सो ग्रेविटेटेड टुवर्ड्स दैट। लेट्स सी, अभी पाकिस्तान आ गया हूँ, यहाँ पे देखो कब रिलीज़ होता है। रिलीज़ होता है तो इंशाल्लाह फिर खरीदते हैं, और एटलीस्ट आई एम प्लानिंग टू। तो जनाब ये था मेरा आज का रिव्यू, बल्कि रिव्यू की बजाय इसको कहना चाहिए ये थे मेरे थॉट्स आईफोन 12 और आईफोन 12 प्रो के बारे में, जो कि ऑलरेडी मार्केट में रिलीज़ हो चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू विश मी, क्या कहना चाहिए, मुबारकबाद ऑन कमिंग बैक टू लाहौर, बिकॉज आई एम रियली ग्लैड टू बी बैक विद माई चिल्ड्रन, विद माई फैमिली। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इट्स ऑलरेडी सनसेट, मेरे ख्याल है मगरिब की नमाज़ पढ़ लेनी चाहिए। अगली वीडियो तक with lots of love and lots of prayers to all the Orange Shorts family. This is Zahid Nisar. You are watching Orange Shorts. Allah Hafiz.